I am Gayatri from Concept Live. So today in this session, we will talk about Archimedes principle. What is Archimedes principle? What are the applications based on Archimedes principle? Where we used and what is relative density and some questions and some numericals based on these concepts. So in previous session, we have learned about buoyancy. So what is buoyancy? Means the upward force exerted by the water on the object is called upward or upthrust, and the tendency of the water to exert the upward force is called buoyant force. And we have discussed three situations in which we see the pressure of the water exerted in upward direction is greater than the pressure exerted in downward direction. It means the pressure, suppose the pressure of the liquid means जो liquid ने जो pressure exert करा वो क्या था, means in upward direction वो क्या था, greater. जो pressure हमारा exert हुआ था in downward direction. So in that case the object will float on the surface. So to keep it, the object completely immersed into the water, all the forces are balanced. So in second situation, अगर हम देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो completely immersed है पानी में, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी दोनों फोर्सेस जो लग रही हैं, मीन्स जो बायोंट फोर्स हमारी जो थी जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी, और जो हमारी सेकंड फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स थी, ग्रेविटी फोर्स जो थी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही थी, वो दोनों फोर्सेस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. सो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल कंप्लीटली इमर्स इनटू द वाटर. एंड इन थर्ड सिचुएशन व्हाट वी सी द प्रेशर ऑफ द water means any liquid is less than the pressure exerted in downward direction. ठीक है. So in that case the object will sink into the liquid or maybe into the water. So these are three type of situations based on which we see the how object will float on the surface, how object will completely immerse into the liquid, and how object will completely sink into the liquid. So now we discussed, so what is Archimedes principle? Archimedes principle ने हमें क्या बताया? So आपको यहाँ पे you see glass of Coca-Cola. So it's a glass of Coca-Cola which is fully filled. तो यहाँ पे जो आइस क्यूब्स आपको दिखाई दे रही हैं, अगर मैं यहाँ पे एक आइस क्यूब और ऐड कर देती हूँ, या फिर आइस क्यूब के प्लेस पे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर इमर्स करती हूँ, देन व्हाट विल हैपन, नथिंग बट जो हमारा इसमें जो लिक्विड है, जो कोका कोला है, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक है, वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी. ठीक है. तो ये हमारा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो इसके बेस पे जो हमारे आर्किमिडीज थे उन्होंने हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें स्टेट करवाया. सो डेफिनेटली उस टाइम पे जब आर्किमिडीज ने हमें ये प्रिंसिपल दिया तो उन्होंने कोका कोला का ग्लास तो मतलब सामने रख के ये फिनोमिना नहीं मतलब ऑब्जर्व करा होगा. ऑब्वियसली कोई ना कोई फिनोमिना तो जिसको देख के आर्किमिडीज ने ये प्रिंसिपल स्टेट करा. सो जो हमारी यूरोपियन कंट्रीज थी, मतलब यूरोपियन कंट्री में जो आर्किमिडीज थे वो वहाँ रहते थे, तो वहाँ पे उन्होंने ये फिनोमिना ऑब्जर्व करा. तो चलो देखते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, see, immersed fully or partially in a fluid. One second. So it experiences an upward force and that is equal to the weight of the fluid displaced by it. Means कोई भी बॉडी है जो इमर्स्ड है, मतलब फुली और पार्शियल. सो जो इमर्स्ड जो बॉडी है उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस हुई एक अपवर्ड फोर्स
and that is equal to the weight of the fluid displaced by it. जो किसके इक्वल है? वो वेट फ्लूइड का जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है, जो हमारे मतलब बायोन फोर्स है वो किसके इक्वल है? जो हमारा वेट फ्लूइड का क्या हुआ है? डिस्प्लेस्ड हुआ है। तो इस केस में हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम इस डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। सपोज आर्किमिडीज ऑब्जर्व when we put our feet into the bucket and the water gets displaced and comes out from the bucket. So if measured, the displaced water will be equal to the backward force or maybe upward force. It means the weight of the liquid that displaced when we immersed our feet into the bucket and which is equal to the water give pressure. मीन जब इस लेडी ने अपने जो फीट हैं जो बकेट के अंदर डिप करे, इमर्स्ड करे, तो उस केस में जैसे ही उसने इमर्स्ड करे उस केस में जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है, वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ है तो वो किसके इक्वल है? मीन्स उस केस में उसने जो वाटर उसने प्रेशर दिया होगा इस डायरेक्शन में, मीन्स इन अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही उसने अपवर्ड डायरेक्शन में उसको प्रेशर दिया तो उस केस में जो वाटर वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो हमारा प्रिंसिपल क्या कहता है? इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। तो वो वाटर जो डिस्प्लेस्ड हुआ है वो किसके इक्वल है? जो हमारी अपवर्ड फोर्स है उसके इक्वल है। तो ये हमारा क्या था? आर्किमिडीज प्रिंसिपल की हेल्प से हमने ये चीज समझी। चलो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सी वी हैव ए शिप और स्टोन है। हमारे पास यहाँ पे एक शिप है और एक स्टोन है। एज यू ऑल नो, शिप floats on the surface of the water and the stone will completely sink into the water. So जो हमारी शिप है वो तो फ्लोट करता है, हमारे जो सी होते हैं, जो समुद्र होते हैं, ओशंस होते हैं, उनके सरफेस पे अगर हम उन्हें लाइक जो ये सी है और जो यहाँ पे जो आपको ये स्टोन दिख रहा है, ये दोनों हम सपोज करते हैं कि एक ही सी है, मतलब एक ही ओशन का जो सरफेस है वो है। उसी सरफेस पे अगर मैं उसी वाटर के सरफेस पे अगर मैं एक स्टोन को थ्रो कर दूं, then stone will completely sink into the water and while ship completely float on the surface. तो दोनों केसेस में जो हमारा शिप है वो तो सरफेस पे फ्लोट हो रहा है, बट जो हमारा जो स्टोन है वो कंप्लीटली इमर्स्ड हो रहा है पानी के अंदर। तो ऐसे क्यों हो रहा है? बिकॉज द लार्जर एरिया ऑफ शिप डिस्प्लेस ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो जो हमारा शिप है, मतलब जो हमारा शिप है वो काफी बड़ा है, तो वो बहुत मतलब जो अमाउंट है वाटर का उसको डिस्प्लेस करना आगे डायरेक्शन में चलता जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर एरिया। क्योंकि उसके लार्जर एरिया की वजह से जो हमारी शिप है वो काफी अमाउंट का जो वाटर उसको डिस्प्लेस करता हुआ आगे मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। मीन्स लार्जर एरिया है शिप का, जिसकी वजह से जो हमारा वाटर है वो लार्जर क्या हो रहा है? डिस्प्लेस्ड हो रहा है। और सेम इन केस ऑफ स्टोन, तो जो स्टोन है वो काफी डेंस्ड होता है, तो जिसकी वजह से जो उसके अंदर जो मैटर है वो कंटेन होता है वो काफी मतलब ज्यादा डेंस्ड उसमें होता है। तो उस केस में जो हमारा स्टोन है, स्टोन का एरिया कितना होगा? बहुत कम, छोटा, मतलब स्टोन काफी छोटा होता है मतलब एज कंपेयर टू शिप। तो जो स्टोन है उसका जो एरिया है वो काफी स्मॉल एरिया होता है एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल एरिया जो अमाउंट जो डिस्प्लेस्ड वाटर की जो अमाउंट है स्टोन शिप के कंपेयर में उतना डिस्प्लेस नहीं कर पाता है अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो सो इन दैट केस जो हमारा स्टोन है वो कंप्लीटली सिंक हो जाता है इनटू द वाटर। मीन जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ in downward direction is greater than the pressure exerted by the water in upward direction. Means जो स्टोन का जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो वो क्या था? ज्यादा था। और जो हमारा वाटर ने जो प्रेशर लगाने की ट्राई कर रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन वो क्या है? कम। मीन्स प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज greater
then pressure exerted by the liquid in upward direction. So in that case the object will sink into the water. Means जो हमारा stone है वो क्या हो रहा है, the stone will sink. और अगर मैं यहीं पे शिप की बात करती हूँ तो जो प्रेशर एक्सर्टेड है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन वो क्या है, कम है. मीन्स प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज लेस देन प्रेशर इन upward direction. So in that case the ship floats on the surface of the water. ठीक है, तो in this case ship floats on the surface of the ocean. ठीक है. So Archimedes principle has many applications. ठीक है, तो हम जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसका हम यूज सबमरीन्स के लिए भी करते हैं, सबमरीन्स में करते हैं, डिजाइनिंग ऑफ शिप में हम करते हैं. मीन्स जो हमारे डिफेंस फोर्स होते हैं, जो नेवी फोर्स होती है उसका हम वो हमारे जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है उसके बेस्ड मतलब जो सबमरीन्स होते हैं उनका यूज वो करते हैं, जो हमारी नेवीज और जो हमारी डिफेंस फोर्स होती है. अगर हम वहीं पे बात करते हैं इलेक्ट्रोमीटर्स की तो वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोमीटर एज वेल. ठीक है, टू डिटरमाइन दी प्योरिटी ऑफ ए गिवन सैंपल ऑफ मिल्क. जो हमारा मिल्क होता है उसकी जो प्योरिटी है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए, पता करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं. और जो हमारे हाइड्रोमीटर्स होते हैं, हाइड्रोमीटर का भी यूज हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल में करते हैं. So these are some applications of Archimedes principle which we use in our day-to-day life. ठीक है, so now we are going to talk about some one numerical based on this principle. Suppose you find your mass to be 42 kg on a weighing machine. Is your mass more or less? आपका जो मास है वो क्या है, 42 kg है. किस पे, वेइंग मशीन पे. तो क्या ये मास ज्यादा है या कम है, इसका क्या आंसर होगा. सो आपको लग रहा होगा कि मतलब हाँ आपका जो वेट है वो क्या है 42 kg है. मतलब हम जब अपनी वेइंग मशीन पे तब वेट मेजर करने जाते हैं तो जो वेट हमें दिखाई देता है तो हम उसी वेट को हम क्या मानते हैं, अपना एक्चुअल वेट मानते हैं. बट ऐसा नहीं होता है. ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन है. बिकॉज द अपवर्ड फोर्स इज द बायोट फोर्स. तब आप वेइंग मशीन पे आप खड़े होते हो तो उस केस में एक अपवर्ड फोर्स लगती है जिसको हम बायोट फोर्स भी बोलते हैं. सो द बॉडी गेट स्लाइटली अपवर्ड, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी होती है वो क्या होती है, स्लाइटली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है. बट और जो कोज करती है कि जो हमारा वेइंग मशीन है वो जो वेट है एक्चुअल वेट से कम वेट हमें शो करे. सो इस केस में जो हमारा एक्चुअल वेट होता है उससे कम जो हमारी वेइंग मशीन है वो हमें शो करती है. सो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, मोर. ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. एंड व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है, द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस is defined as mass per unit volume. तो ये हमने अपने लास्ट जो सेशन था उसमें भी हमने ये चीज देखी थी कि हमने डेंसिटी को रिलेट भी करा था बायोट फोर्स की टर्म में, उसके मैग्नीट्यूड को भी हमने उसमें देखा था. तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारे डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं क्या उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है या फिर सेम होती है. कुछ कंडीशंस ऐसी होती है मीन्स द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अंडर स्पेसिफाइड कंडीशंस रिमेन सेम. कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो डेंसिटी होती है सेम होती है बट इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस. बट वो अलग अलग होती हैं अलग अलग सब्सटेंस के लिए. सपोज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, वी हैव टू मतलब मटेरियल, वन इज वाटर एंड अनदर वन इज गोल्ड. एंड वी से
the density of water is 1000 kilogram per meter cube, and where we see the density of gold, and that is 19,300 किलोग्राम मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारी डेंसिटी होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए, ठीक है। और हम डेंसिटी को अगर हम फॉर्मूले की टर्म में अगर हम राइट डाउन करने को ट्राई करें तो जो हमारी डेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू में मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। और मास के हमारे यूनिट्स क्या होती हैं, किलोग्राम, एंड वॉल्यूम की मीटर क्यूब। तो ये हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है जिससे हम देखते हैं कि मतलब डेंसिटी मास से कैसे वेरी करता है, वो डेंसिटी वॉल्यूम के साथ कैसे वेरी करता है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। अब हम बात करते हैं कि ठीक है डेंसिटी तो हमने पहले भी कभी सुना है कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। सो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ इट्स डेंसिटी टू दैट ऑफ वाटर। मतलब हम किसी भी या लाइक हमारे पास कोई सब्सटेंस है, अगर हमें उसकी डेंसिटी को मेजर करना है तो उस डेंसिटी को मेजर करने के लिए मींस उस सब्सटेंस की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम किसके रेफरेंस में उसकी डेंसिटी को मेजर करते हैं, वाटर के रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि जो हमारा वाटर होता है वो क्या होता है, इट इज मच इजी टू फाइंड, और उसका जो अबंडेंस होता है वाटर का वो क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो उस केस में जो हमारी डेंसिटी होती है मींस इफ वी मेजर द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, sorry, density of liquid or solid, so the density of water is taken। अगर हम बात करते हैं density of solid और liquid, so density of water is taken। अगर मेरे को यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इन सब्सटेंस मींस अगर मैं यहाँ पे कोई भी लाइक गोल्ड ले लूँ या फिर कोई भी ऐसा सॉलिड मटेरियल ले लूँ या फिर कोई भी ऐसा लिक्विड मटेरियल ले लूँ, तो सॉलिड और लिक्विड जो मटेरियल होते हैं उनकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम उसके रेफरेंस में किसकी डेंसिटी को देखते हैं, वाटर की डेंसिटी को देखते हैं। बट in case and for gases the density अगर हम मेजर करने की ट्राई करें तो उस केस में जो डेंसिटी होती है वो किसकी टर्म में हम देखेंगे, एयर की टर्म में देखेंगे। मींस जो हमारी डेंसिटी ऑफ एयर है उसके रेफरेंस में हम डेंसिटी ऑफ गैसेस को मेजर करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा सॉलिड और लिक्विड है तो उस केस में हम किसको रेफरेंस लेंगे, वाटर को रेफरेंस लेंगे। अगर हम वहीं पे अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस जो हमारी एयर टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उस केस में हम एयर की जो डेंसिटी होती है रूम टेम्परेचर पे उसको हम रेफरेंस में लेंगे इन केस ऑफ गैसेस। तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला था। सो वन मोर, द रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स, ठीक है। मींस रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट क्यों नहीं है, क्यों? Because according to formula relative density is equals to density of substance, और हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, एंड दैट और उसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। और अगर मैं वही में बात करूं डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर की भी डेंसिटी का फॉर्मूला तो वही होता है ना जो मेरा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला होता है। तो इस केस में भी जो हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर होगी वो क्या होगी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दोनों केसेस में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी डेंसिटी वो क्या है, सेम होती है, जिसकी वजह से वो दोनों क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाते हैं। और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बच जाता है, नथिंग। सो रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट्स। सो इस फिनोमिना के बेस पे हम कह सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है। मींस इट मींस रिलेटिव डेंसिटी क्या है, यूनिटलेस है, उसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ
क्वेश्चंस की। Suppose the relative density of silver 10.8 and the density of water 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। The density of silver is, तो हमारी सिल्वर की डेंसिटी क्या होगी? तो गिवन क्या है हमारे पास? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो कितनी है? 10.8 और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड विच इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और हमें फाइंड आउट क्या करनी है? हमें डेंसिटी फाइंड आउट करनी है सिल्वर की, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सिल्वर। And what is the formula? Formula is relative density is equals to में density of any substance, इस केस में हमारा सब्सटेंस क्या है? सिल्वर है, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। RD relative density is equals to density of silver and density of water. So relative density हमें क्या दी मैंने? 10.8, ये हमें फाइंड आउट करनी है, और डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर हम डेंसिटी ऑफ सिल्वर देखें यहाँ से, तो हमारे पास क्या आती है? 10.8 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे क्या है? डेंसिटी ऑफ सिल्वर, जो हमारा आंसर है ए। तो ये हमारी है डेंसिटी ऑफ सिल्वर एंड विच इज 10.8 इंटू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, राइट। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट यूनिट फॉर द रिलेटिव डेंसिटी अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें से हमें ये बोला गया है कि मतलब इन 4 ऑप्शंस में से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करना है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट का। बट अभी हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी है वो यूनिट लेस होती है, उसकी कोई यूनिट ही नहीं होती। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या होगा? आंसर बी, मींस यूनिट लेस, जिसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, तो वो यूनिट लेस होती है। नाउ a body immersed in a liquid will rise to the surface if the buoyant force is acting on it, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो हमने इमर्स करवाया पानी के अंदर, मींस एनी लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर, और जो ऑब्जेक्ट है वो बायोंट फोर्स की वजह से जैसे ही उसके ऊपर बायोंट फोर्स लगती है वो अपवर्ड आ जाता है, मतलब सरफेस पे आ जाता है। सो हमने 3 कंडीशंस हमने स्टार्टिंग में ही देखी थी कि कैसे कैसे जो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट विल सिंक एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इमर्स। तो इस केस में अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा प्रेशर एक्सर्ट हुआ बाय द वाटर, वो क्या है? ग्रेटर है एज कंपेयर टू प्रेशर एक्सर्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो इसका मतलब क्या है? तब हमारी बायोंट फोर्स एक्ट हुई, तो उस केस में जो हमारा प्रेशर था क्या था? ग्रेटर था। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर क्या है? ग्रेटर देन इट्स एक्चुअल वेट। सो ये हमारा इसका आंसर है। सो these are some concepts of gravitation which we discussed in our session. What is Archimedes principle and what is relative density, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्रेविटेशन चैप्टर है ये हमारे यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स, सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।